Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 11, the preposition. So let's start the chapter. Chapter number 11, the preposition. Read and understand. पढ़ते हैं और समझते हैं. First, my clothes are in the box. Second, the girl sat on the bench. Third, the eagle flew over our house. Fourth, keep the stool under the bed. The words in, on, over, and under show relation between the clothes and the box, the girl and the bench, the eagle and the house, and the stool and the bed respectively. यहाँ पर जो वर्ड्स हैं इन, ऑन, ओवर, अंडर, ये दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बता रहे हैं. जैसे इन किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? क्लोथ्स और बॉक्स के बीच में. ऑन गर्ल और बेंच के बीच में. ओवर ईगल और हाउस के बीच में. अंडर स्टूल और बेड के बीच में. हेंस दे आर प्रीपोजिशंस. तो ये वर्ड्स कहलाते हैं प्रीपोजिशंस. Thus, we can say a word which shows relation between a noun or a pronoun and some other word in a sentence is called the preposition. वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड के साथ बताते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशंस. रीड एंड अंडरस्टैंड. पढ़ते हैं और समझते हैं. फर्स्ट, द इंग्लिश रूल्स ओवर अस. Second, Divya felt the earth move beneath her feet. Third, we went for a walk along the lake. Fourth, Surya walked across the field. A preposition is said to govern a noun or a pronoun and is always followed by the objective case. जो preposition होती है वो noun और pronoun को govern करती है और वो हमेशा किसी एक objective case को follow करती है. Words followed by prepositions. अब हम वो words पढ़ेंगे जिनके बाद prepositions आती हैं. Study the words followed by given prepositions in the following sentences. अब यहाँ पर हम कुछ prepositions और उनसे पहले आने वाले words देखेंगे. At. Deepak was alarmed at Manu's behavior. The train arrived at the station on time. People laughed at Karan's foolishness. We were grieved at the news. यहाँ पर आप देखिए किस किस वर्ड के बाद एट आता है. अलार्म्ड, अराइव्ड, लाफ्ड, ग्रीव्ड. इन वर्ड्स के बाद हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं. नेक्स्ट, टू. आई एम addicted to the books of Enid Blyton. I am close to my mother. Dogs are faithful to their masters. Soumya did not reply to my letter. Mr. Sharma was married to Mrs. Sharma 10 years ago. Rohit invited me to the photo exhibition. The headmaster is related to me. The staff was grieved to hear the news. Shaurya is in debt to Shiva for his generosity. अब आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन टू आता है. जैसे एडिक्टेड टू, क्लोज टू, फेथफुल टू, रिप्लाई टू, मैरिड टू, इनवाइटेड. अब यहाँ पर इनवाइटेड टू नहीं आएगा, इनवाइटेड मी टू, रिलेटेड टू, ग्रीव टू, इन डेप्थ टू. अब वैसे तो आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा यहाँ पर हमें कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन. वी डील इन आयुर्वेदिक मेडिसिन. दीपा फेल्ड इन इंग्लिश. Grandmother always bathed in cold water. Riya is efficient in her work. Bhumi takes delight in dancing. चेतन इज ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स. अब आप यहाँ पर भी वर्ड देखिए, डील इन, फेल्ड इन, बेद इन, एफिशिएंट इन, डिलाइट इन, ऑनेस्ट इन. यहाँ पर हम प्रीपोजिशन एन का यूज करते हैं. नेक्स्ट, ऑन. द मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट. डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर हेल्प. टेक पिटी ऑन द पुअर पीपल. नेवर टेक रिवेंज ऑन एनीवन. Jay congratulated his son on his success. Divya agreed with me on this point. तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं called on, depend on, pity on, revenge on, congratulated on, agreed with on,
तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया है। नेक्स्ट है ऑफ। नेहा इज अफ्रेड ऑफ मैथ्स। चिल्ड्रन born of rich parents are very proud. Take care of your health. यहाँ पर afraid के साथ ऑफ आएगा, born के साथ ऑफ आएगा, care के साथ ऑफ आएगा। ऐसे ही the basket is full of fruits. I was tired of studying science. Lucy was robbed of all her jewelry. तो यहाँ पर भी हमने preposition of का ही यूज किया है। नेक्स्ट for। for कहाँ पर आता है? I am obliged to my teachers for their help. The thief begged for forgiveness. She was no pity for the little boy. Krishna was prepared for the worst. I waited for my turn at the counter. Nidhi has a taste for good tea. यहाँ पर obliged to में कि हम किस लिए obliged हैं, तो यहाँ पर जो reason होगा वहां पर for लगाएंगे। ऐसे ही begged for, pity for, prepared for, waited for, taste for. Next, by। We should abide by the school rules. Neha is always accompanied by her husband. यहाँ पर abide by और accompanied by. Next, upon। Amit acted upon his father's advice. Always depend upon your own efforts. यहाँ पर acted upon, यहाँ पर depend upon. Next, about। Mothers are always worried about their children. I inquired about his health. Be careful about what you say. There is nothing you can do about it. तो यहाँ पर भी worried के साथ about, inquired के साथ about, careful के साथ about और do के साथ about. Next preposition into. Thieves broke into the house to take revenge. The truck drove into a line of parked cars. यहाँ पर broke into, drove into. With। with मतलब क्या हो गया कि साथ में जब हम कोई काम करते हैं, जैसे विधि agreed with her friends. Anup is angry with Ankit. Jaya is busy with her work. The teacher was displeased with Abhi. The bucket was filled with cold water. Children jumped with joy after their victory. Suti quarreled with Lavina. तो यहाँ पर जो words हैं agreed with, angry with, busy with, displeased with, filled with, jumped with and quarreled with. कुछ और words भी हैं जहां पर हम with का use करते हैं। We parted with tears in our eyes. I am satisfied with my achievements. It is a pleasure to deal with children. The students were supplied with winter clothes. The police officer was rewarded with a medal. The watchman was charged with murder. Next, against। जब हम किसी के opposite कोई काम करते हैं, जैसे Alexander fought against Porus. Alexander ने किसके खिलाफ लड़ा था? Porus के। तो यहाँ पर आ जाता है against. Never lean against glass doors। मतलब कभी भी हमें जो कांच के दरवाजे हैं उन पर क्या नहीं होना चाहिए, उनके अगेंस्ट उन पर लटकना नहीं चाहिए, उन पर ऐसे लेटना नहीं चाहिए सहारा लेकर। From। Karan is different from Raman. Karu borrowed money from me. Mr. Verma parted from his family after the fight. Now it's time to answer. A exercise है fill in the blanks with suitable prepositions given below. आपको blanks fill करने हैं, जो भी आपको यहाँ पर बॉक्स में prepositions दिए हैं उनका यूज करके आपको sentences complete करने हैं। First is there are trees dash of our house. यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि पेड़ कहाँ पर है? हमारे घर के सामने। वैसे आप यहाँ पे behind भी लिख सकते थे कि हमारे घर के पीछे हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रीपोजिशन जो सूटेबल हो सेंटेंस में वो आप फिल करेंगे। सेकेंड, डू नॉट स्टैंड डैश अ व्हीकल। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं डू नॉट स्टैंड ऑन अ व्हीकल। व्हीकल पर हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। थर्ड, वी लॉस्ट द मैच डैश सेंट कोलंबस। हमने किससे मैच हार गए? मतलब हम टू सेंट कोलंबस। फोर्थ, द मिनिस्टर स्टूड। मिनिस्टर कहाँ खड़ा है? द पीपल, मतलब लोगों के बीच में, अमंग द पीपल। अगर हमने इन फ्रंट ऑफ नहीं लिखा होता तो यहाँ पर हम इन फ्रंट ऑफ भी लिख सकते थे कि मिनिस्टर लोगों के सामने खड़ा है, या
अब बहुत सारे लोग हैं, पीपल है यहाँ पर, तो बिटवीन नहीं आता है, क्योंकि बिटवीन आता है दो चीजों के बीच में, तो यहाँ पर मिनिस्टर और पीपल है, मतलब ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर अमंग आ सकता है। नेक्स्ट, फिफ्थ, कीप द बैग्स। बैग्स कहाँ पे रखो, यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, चेयर और टेबल, तो हम लिख सकते हैं कीप द बैग्स बिटवीन द चेयर एंड द टेबल, मतलब चेयर और टेबल के बीच में रख दो। पीपल बिल्ड हाउसेस, लोग घर बनाते हैं। डैश द ब्रिज, ब्रिज के, पुल के नीचे भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बिहाइंड द ब्रिज भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं पीपल बिल्ड हाउसेस अंडर द ब्रिज, पुल के नीचे। वी वेंट डैश बस टू मेरठ, वी वेंट बाय बस, हम बस से या बस के द्वारा मेरठ गए। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ बी एक्सरसाइज, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब आपको यहाँ पर दो प्रीपोजिशन गिवन है, जो भी करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग आपको उस पर टिक लगाना है। फर्स्ट, जय टेक्स डिलाइट इन और बाय हिज स्टडीज, तो डिलाइट के साथ क्या आता है, इन हिज स्टडीज, तो इन पर हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, बी वेयर फ्रॉम और ऑफ रॉक्स इन अ न्यू प्लेस, तो यहां पर आएगा बी वेयर ऑफ। नेक्स्ट, वी ऑल अग्रीड, हम सब मान गए, अग्री किससे हुए, विद द प्रपोजल, विद, अग्रीड के साथ विद। नेक्स्ट, उपहार सिनेमा वॉज सेट ऑन फायर। नेक्स्ट, डू नॉट बी जेलस ऑफ अदर्स। नेक्स्ट, हर फेस सीम्स फेमिलियर टू मी, मतलब जाना पहचाना लग रहा है, टू मी। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 11 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको प्रीपोजिशन समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।